Hello students, I Dilip Kumar Jain, PGT Physics, KV number 1, Udaipur. Today I am here with you student with the numericals of refraction of light part 6. इससे पहले कि 5 पार्ट में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं और आज के इस सेशन के अंदर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इम्पोर्टेंट फार्मूला और 11 न्यूमेरिकल्स जो हैं हम करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड फार्मूला. ये जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं. ये चीज़ें जो है वो आपको आनी चाहिए, ये फार्मूले जो है वो आपको आने चाहिए न्यूमेरिकल करने से पहले. तो पहले इसको अपन देखते हैं. फर्स्ट वन जो है स्नेल्स लॉ, second law of refraction of light, sin I upon sin R equal to n to 1 equal to what? Constant. What is the law? The ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is a constant, and this constant quantity is known as what? Refractive index. Here n to 1 is known as what? Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. n to 1 क्या है? Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. If n to 1 is greater than 1, then what happened? Light is traveling from rarer medium to denser medium. If n to 1 is less than 1, then denser medium light is traveling from denser medium to rarer medium. All of you know what is the diffraction? Just when light travels from one transparent medium to another transparent medium, it changes its path in second medium. Most important reason. What is the reason behind the refraction of the light? Is the change of speed of light in second medium. n to 1, अगर n to 1 is greater than 1, तो इस कंडीशन के अंदर सेकंड मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. एंड इन दिस कंडीशन लाइट, रिफ्लेक्टेड ray of light bends towards the normal. But when n to 1 is less than 1, when light is traveling from denser to rarer medium, in this condition speed of the light in the second medium, that is rarer medium, is increased. स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी और इस कंडीशन के अंदर रिफ्लेक्टेड ray of light is bent away from the normal. Now n to 1, refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to what? Speed of light in medium 1, that is v1, upon speed of light in medium 2, that is what? v2. Speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2. Refractive index of n to 1 equal to what? Speed of light in medium 1, that is v1, upon speed of light in medium 2, that is v2. If medium 1 is air or vacuum, then refractive index is known as what? Absolute refractive index of medium 2. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि फर्स्ट मीडियम जो है वो क्या है आपका? एयर या वैक्यूम. तो इस कंडीशन के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2. It is denoted by n2 if c is the speed of light in air or vacuum and v is the speed of light in medium, then refractive index of the medium nm is given by nm equal to what? Speed of light in air, that is c upon speed of light in medium v. What is c? Speed of light in air or vacuum, that is equal to 3 into 10 to power 8 meter per second. So refractive index of medium is given by c upon
V. Absolute refractive index of some material medium is what? Air 1.003, ice 1.31, water 1.33, kerosene 1.44, alcohol 1.36, turpentine oil 1.47, crown glass 1.52, dense flint glass equal to 1.65, carbon disulfide is 1.63, ruby is 1.71, diamond is what? 2.42. Basically, refractive index is the measure of bending of light in the second medium. So maximum refractive index is what? Diamond, that is what? 2.42. So in this condition we can say that the light is maximum bend in diamond, and refractive index is what? Most of diamond. So speed is decreasing in dense medium, and in case of diamond it is decreasing most. अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ऑप्टिकली उतना ही डेंस होगा, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी जो है वो डिफरेंट है। मास डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी जो है सेंसिटिविटी और रेस्पॉन्स ऑफ द मटेरियल टुवर्ड्स द लाइट। यहाँ पे अपन देखेंगे वाटर और केरोसिन। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है और केरोसिन का 1.44 है। लेकिन अगर अपन देखें यहाँ पे वाटर की मास डेंसिटी जो है ज़्यादा है और केरोसिन की मास डेंसिटी क्या है? कम है। लेकिन यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें अपन तो केरोसिन का 1.44 है, वाटर का 1.33 है। इसका मतलब केरोसिन की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो वाटर के कंपेरिजन में क्या है? ज़्यादा है। अब देखें इसी प्रकार से ग्लास के केस में एक क्राउन ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है, और डेंस फ्लिंट ग्लास जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.65 है। अब अपन देखते हैं आगे। अब देखते हैं थर्ड वन जो है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला इज व्हाट? 1/v minus 1/u equal to 1/f. What is v? Image distance. U is what? Object distance. और f is what? Focal length. आपको याद होगा मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v plus 1/u equal to what? 1/f. लेंस फार्मूला में क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा, और मैग्निफिकेशन देखिए m equal to what? साइज ऑफ इमेज h dash upon साइज ऑफ ऑब्जेक्ट h equal to what? v upon u. मिरर के केस में क्या होता है? माइनस वी अपॉन यू, लेकिन लेंस के केस में क्या होगा? प्लस वी अपॉन यू, या m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी अपॉन यू। अब देखते हैं अपन जब भी कोई न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अपन को साइन कन्वेंशन देखना है, व्हाट इज यू, वी एंड एफ। तो यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस। फॉर कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट 5 केस, जब इमेज जो है वो आपकी रियल और इन्वर्टेड बनती है उस कंडीशन के अंदर u जो है आपका नेगेटिव होगा, v पॉजिटिव होगा और f पॉजिटिव होगा। फर्स्ट 5 केस के अंदर जब कॉन्वेक्स लेंस रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है और लेंस के दूसरी तरफ, उस कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगी, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगी और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस भी पॉजिटिव। लेकिन 6 केस के अंदर जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं अपन? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इस कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट के साइड में ही उसकी एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। और उस 6 केस के अंदर u नेगेटिव है, v नेगेटिव है और f जो है वो पॉजिटिव। इस कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है और फोकल लेंथ क्या है आपकी? पॉजिटिव है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। इमेज फॉर्मेशन के अंदर हमने देखा 2 केस हैं, ठीक है। दोनों केस के अंदर जो उसकी इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है वो नेगेटिव होगा,
वी भी आपका नेगेटिव होगा और एफ भी क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। तो जो भी आपका साइन कन्वेंशन जो था आपका, जो लेंस का था, मिरर का था, वो आपका सब सेम ही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट जो है ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर। ठीक है, दूसरा जो है ऑल डिस्टेंस आर measured in the direction of incident ray taken as what पॉजिटिव। मीन्स अगर ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में अपन अगर कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या होगी पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट साइड में ऑप्टिक सेंटर के अंदर मेजर करेंगे तो आपका जो डिस्टेंस वो क्या होगी नेगेटिव। ऑल द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज टेकन एज पॉजिटिव इफ लाइक अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो हाइट या इमेज जो है उसकी साइज क्या होगी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर उसकी इमेज या ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, उसके नीचे है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो आपका हाइट है वो क्या कहलाएगी नेगेटिव। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट जो है पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस इज व्हाट जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान रखने की बात है, जो फोकल लेंथ जो है वो किस में होनी चाहिए मीटर के अंदर। जनरली फोकल लेंथ को अपन किस में एक्सप्रेस करते हैं सेंटीमीटर में, लेकिन जब आपको पावर निकालना है तो उस कंडीशन में जो फोकल लेंथ जो है उसको आपको फर्स्ट किसके अंदर मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अगर सेंटीमीटर में दिया और उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं सिंपली डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगा आपका डायोप्टर, और इसको सिंपल अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर डी से। इफ पी इज व्हाट पॉजिटिव डी, ठीक है, 2 प्लस 2.5 डी प्लस 1.5 डी प्लस 3.0 डी, इस प्रकार की अगर पॉजिटिव पावर आता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा लेंस जो है वो कॉन्वेक्स होगा या कन्वर्जिंग लेंस होगा। लेकिन इफ पी इज व्हाट नेगेटिव, अगर पी जो है वो अगर अपना नेगेटिव हो गया तो उस कंडीशन के अंदर क्या है कि पावर जो है आपका नेगेटिव है तो अपना लेंस क्या होगा कॉनकेव लेंस होगा, और वो लेंस क्या कहलाएगा आपका डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ जो मैग्निफिकेशन है m, ठीक है, m जो है वो क्या है h डैश अपॉन h और इक्वल टू v अपॉन u। अगर ये m जो है नेगेटिव आया तो वो आपकी इमेज कैसी होगी रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन इफ m इक्वल टू व्हाट पॉजिटिव तो इमेज इज व्हाट वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ m इज लेस देन 1 इमेज इज व्हाट डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी। लेकिन अगर आपका m जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है 1 से ज़्यादा हुआ तो इमेज जो है वो क्या होगी आपकी इनलार्ज होगी। तो ये जो भी मैंने फार्मूला आपसे डिस्कस किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अब अपन जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। Question number 1. A concave lens has focal length of 20 cm. At what distance from the lens a 5 cm tall object will be placed so that it forms an image at 15 cm from the lens? Also calculate the size of the image formed. देखिए अपन को सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन के अंदर कौन सा लेंस दिया हुआ है, कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। At what distance from the lens a 5 cm tall object be placed? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपन को यो निकालना है, ऑब्जेक्ट की साइज 5 सेंटीमीटर दी हुई है और जो इमेज है वो कितनी 15 सेंटीमीटर पे बन रही है। कॉनकेव लेंस के लिए अपन ने साइन कन्वेंशन के अंदर देखा एफ यू और वी सब नेगेटिव होते हैं, अपन को यू नहीं दिया हुआ है तो लेकिन अपन देखें एफ इक्वल टू -20 वी इक्वल टू -15 और ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर। बाय यूजिंग फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u वी गेट 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/v की वैल्यू रखें -15 माइनस 1/f, f की वैल्यू रखें -20 और इसको अगर अपन सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 1/u इक्वल टू -1/60 और u इक्वल टू व्हाट -60 सेंटीमीटर। मीन्स
the V place the object at 60 centimeter from the optic center in front of the means left side of the lens. Now since m equal to what, h upon ho, hi upon ho equal to v upon u, v और u अपने पास में है, h o भी दिया हुआ है, तो h i इक्वल टू व्हाट, v अपॉन u इंटू एच ओ। v कितना है -15, u कितना है -60 और h o कितना है 50। तो इस कंडीशन में अपन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 15 1 जा 15, 4 जा तो 5/4, 1.25 सेंटीमीटर। अब देखिए ऑब्जेक्ट की साइज जो है कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और जो इमेज बन रही होगी कितनी, 1.25 सेंटीमीटर। इमेज इज डिमिनिश्ड, ठीक है, वर्चुअल होगी, और क्या होगा आपका, इरेक्ट, सीधी होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, 50 सेंटीमीटर। इट्स 20 सेंटीमीटर tall image is formed on the screen placed at a distance of 10 centimeter from the lens। अब देखिए यहाँ पर if 20 centimeter tall image is formed on screen placed at a distance of 10 centimeter from the lens, ठीक है। अब कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब यहाँ पे क्या दिया, हाइट ऑफ द इमेज कितना है, -20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 50 सेंटीमीटर है। और इस कंडीशन के अंदर अपन देखेंगे कि इमेज डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर अपन ये मान लेते हैं कि जो इमेज जो है वो कैसी बन रही है, रियल बन रही है, ठीक है ना, रियल बन रही है, इसलिए एच डैश जो है वो कितना है, -20। अब देखिए तो m इक्वल टू वॉट, एच डैश अपॉन एच, वो क्या होगा, v अपॉन u होगा, ठीक है। यहाँ पर v कितना दे रखा है आपको, 10 सेंटीमीटर, तो u इक्वल टू क्या होगा, v इंटू एच अपॉन एच डैश। v की वैल्यू है 10 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 50, और एच डैश की कितनी है, -20। तो अब 10 से 10 तो -50 अपॉन 2, u इक्वल टू कितना आ गया, -25 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको 25 सेंटीमीटर ऑप्टिक सेंटर से लेफ्ट साइड में रखेंगे। सिंस 1/v - 1/u इक्वल टू व्हाट, 1/f, तो इससे फोकल लेंथ निकालते हैं अपन, 1/f इक्वल टू 1/10 माइनस 1/-25। अब देखें 1/10 अपॉन 1/25, अगर इसको अपन 50 कॉमन ले लेते हैं, 5 + 2 7/50, और f इक्वल टू 50/7 सेंटीमीटर, और f इक्वल टू व्हाट, 7.14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, a needle placed 45 centimeter from a lens forms an image on a screen placed 90 centimeter on the other side of the lens. Identify the type of lens, determine its focal length and power. What is the size of image if needle is 5 centimeter in height? अब देखो, a needle placed 45 centimeter from a lens form an image on a screen placed 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। अगर दूसरी साइड में बन रहा है तो लेंस क्या होगा आपका, कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। अगर सेम साइड में बनता तो कॉन्वेक्स होता। नीडल प्लेस 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस फॉर्म एन इमेज ऑन ए स्क्रीन प्लेस 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर u कितना हो गया, -45, v कितना हो गया, +90। सिंस इमेज फॉर्म ऑन अदर साइड, तो लेंस क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। 1/f इक्वल टू व्हाट, 1/v - 1/u। v कितना है, 1/90 है, u कितना है, -45 है। अगर इसको अपन रख करके अगर इसको सोल्व करें, 1/90 + 1/45, तो ये कितना होगा, 1 + 2 और 3/90। इसको सोल्व करेंगे तो f इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। जो भी आपका
लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। पावर क्या हो जाएगा 1/f, एफ को देखो 0.30 मीटर में कन्वर्ट किया है, तो अब इसका पावर कितना हो गया प्लस 3.33 डी। अब m कितना हो जाएगा, मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं, v/u इक्वल टू 90/-45, m इक्वल टू कितना आ गया -2। -2 का मतलब क्या है, इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ m इज व्हाट 2 ग्रेटर देन 1, तो इमेज जो है वो कैसी है, इनलार्ज है। m इक्वल टू व्हाट hi/ho। अब m इक्वल टू -2 hi/ho कितना है 5, तो hi इक्वल टू व्हाट -10 सेंटीमीटर। साइज ऑफ इमेज इज व्हाट 10 सेंटीमीटर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि h इक्वल टू क्या है -10 सेंटीमीटर है, ठीक है। Refractive index, question number 4. Refractive indices of 4 media A, B, C and D are given in the following table. मीडियम A, B, C and D. A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, B का 1.50 है, C का 1.52 है, D का 2.0. If light travel from one medium to another, in which case the change in speed will be minimum and maximum. देखो मिनिमम कब होगा, जब दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस क्या होगा, सबसे कम होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब ये डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो अब देखिए मिनिमम चेंज इन सीन लाइट मूव फ्रॉम 1.502 एंड 1.52, मतलब बी एंड सी। जब आपका मिनिमम चेंज कब होगा, मिनिमम चेंज कब होगा स्पीड, जब लाइट बी से सी के अंदर या सी से बी के अंदर जाएगी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, मैक्सिमम के लिए क्या है, मैक्सिमम चेंज होना चाहिए व्हेन लाइट मूव फ्रॉम बिटवीन 1.33 एंड 2.40, मींस लाइट should be travel from A to D or from D to A. Now next one, question number 5. A convex lens with a focal length of 10 centimeter. At what distance from the lens should the object be placed? A convex lens has a focal length of 10 centimeter. At what distance from the lens should the object be placed so that it forms a real and inverted image 20 centimeter away from the lens? What would be the size of the image formed if the object is 2 centimeter high? With the help of a ray diagram, show the formation image by the lens in this case. Okay, lens क्या आपका convex lens है, तो convex lens का मतलब आपका f इक्वल टू क्या हो गया +10, ठीक है। और रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, मिस v इक्वल टू व्हाट +20 एज इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, u निकालना है आपको, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/v, और u की वैल्यू रख दिया आपने 20 एलसीएम लेकर के इसको सोल्व किया, 1 - 2 इक्वल टू व्हाट -1/20। सो u इक्वल टू व्हाट -20 सेंटीमीटर, u इक्वल टू व्हाट 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट व्हाट 2f, तो image is also formed at what 2f on the other side of the lens, so image will be of same size as object as magnitude of u equal to what magnitude of v, and therefore the height of the image will be 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसका रे डायग्राम अपन देख सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को अपन ने 2f पे रखा है तो उसकी इमेज भी 2f पर ही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इन रिलेशन टू स्पीड ऑफ लाइट? We know that v equal to what c/n, or n equal to what 2.42, means the speed of the light is diamond is 1/2.42 times the speed of light in free speeds। जो आपका डायमंड के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी वो कितनी होगी 1/2.42 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, मीन्स उसकी लाइट की स्पीड जो है वो डायमंड के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
The refractive index of water is 1.33 and the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Calculate the speed of light in water. बहुत ही सिंपल सा है. Refractive n equal to speed of light in vacuum upon medium c upon v. तो v निकालना अपन को c upon n. c कितना है 3 into 10 to the power 8, n कितना है 1.33. तो अब इसको अपन अगर देखें तो 3 into 10 to the power 8 1.33 का मतलब 4/3 हो गया. इसको अगर सॉल्व करें 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.50. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3.10. कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. वेरी सिंपल. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ मीडियम c अपॉन v. तो v इक्वल टू व्हाट, c अपॉन n. 3 into 10 to the power 8 1.50 or 2 into 10 to the power 8 meter per second. Now next one, the speed of light in a transparent medium is what, 0.6 times that of its speed is vacuum. What is the refractive index of the medium? Since c equal to what, n equal to what, c upon v, we get n equal to what, c upon 0.6. c cancel, 1 upon 0.6 or 10 upon 6 or 5/3, which is going to 1.67. So question number 7, 8 and 9 जो है आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर जो है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. At what distance should an object be placed to form a convex lens of focal length 18 cm to obtain an image at 24 cm from it on the other side? What will be the magnification produced in this case? Okay, अपन को क्या क्या निकालना है? Object distance. At what distance should an object be placed? U निकालना है अपन को. कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ जो है 18 सेंटीमीटर है और इमेज क्या है 24 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर f इक्वल टू +18 और v इक्वल टू +24. यूजिंग 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, और फॉर u वी गेट 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन f. सो 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन 18. By taking LCM 24 72, 3 minus 4, u equal to what, minus 72 centimeter. Object should be kept at a distance of 72 centimeter on left side of the convex lens from the optic center. Magnification m equal to what, plus v upon u, or 24 upon minus 72 or equal to minus 1/3. Image is real, inverted and diminished. Today's last question, question number 11. How far should an object be placed from a convex lens of focal length 20 cm to obtain its image at a distance of 30 cm from the lens? What will be the height of the image if the object is 6 cm tall? देखिए, how far should an object be placed, यहाँ पे भी अपन को u निकालना है. ठीक है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस जो है 30 सेंटीमीटर है और हाइट जो है ऑफ द, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज, एच डैश निकालना है और ऑब्जेक्ट की हाइट जो है 6 सेंटीमीटर. तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f, और उससे क्या होगा 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन f. v को रख देंगे अपन 30 और f को रखेंगे 20. इसको अपन सॉल्व करेंगे, वी गेट u इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. यूजिंग m इक्वल टू व्हाट, hi upon ho इक्वल टू प्लस v upon u. We get height of the image h dash equal to what, plus v upon u into ho. v की वैल्यू प्लस 30 upon minus 60 into 6. In this condition, what we get, minus 3 centimeter. Negative sign show that image is real and inverted, and size is what? Size is decreasing. देखिए ऑब्जेक्ट की जो
हाइट है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है, और जो इमेज अपन को मिली उसकी हाइट कितनी है -3 सेंटीमीटर है। आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आज जो भी अपन ने इम्पोर्टेंट फार्मूला हो या जो भी अपने न्यूमेरिकल सोल्व्स किए हैं, ठीक है, सारे के सारे सभी चीज़ों के जो है पीडीएफ नोट्स जो हैं आपको जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप मिल जाएंगे। आप वहाँ पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।